4 in every 5 women in Pakistan face some form of domestic abuse. 80% of Pakistani women experience domestic violence, while 1 in every 3 experiences some form of violence such as rape, honor killing, immolation, acid attacks, and verbal or psychological abuse. Women are not only weak and poor in Pakistani society, but bear another form of discrimination in the shape of laws that are made to subjugate and oppress them. I wanted to be part of this because I want to feel myself that what woman has actually felt when she gets into all this trouble and कोई भी बंदा इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता until or unless वो खुद उसका एक पार्ट ना हो. So I am part of this campaign because I wanted to get into this and feel for myself. जब हमने प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को किया तो मुझे बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के जो है रिएक्शंस मिले. उसमें ये था द एल्डर पीपल they were like more concerned about me. They were feeling pity for me कि इसको क्या हुआ. Even some of them came and asked कि आपको क्या हुआ. They were mostly and the youngster, the people of my own age group, they were like maybe she got beaten. She looks like a girl who was got beaten. They were like having a negative comments, but they were gossiping to each other. They look at that girl. She looks so weird. She must have done this. I was just listening to they were having the low voices, but still I was listening to whatever they were gossiping about me. But yeah, there were some good people in the society who were concerned about me that, oh, she just got beaten. She was asking me, are you okay, fine, you need some help or something like that. So they were like, I got both negative and positive comments about myself. So there was one particular canteen wala, and he was so much concerned about whatever has happened to me. He literally came and asked if I'm fine. उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो एकदम से शॉक हो गया कि मुझे क्या हुआ है, अगर मुझे हेल्प चाहिए. उसने मेरे से पूछा कि आपको यूनी में तो नहीं किसी ने कहा, किसी लड़के ने आपको कुछ कहा. He was literally shocked to see me. He felt so pity and sorrow for me कि मैंने कहा नहीं. फिर मुझे उसको बताना पड़ा कि नहीं, I'm fine. It's just a shoot, हम experiment कर. I believe women should step forward. It's not like we don't have power here. Media support us. We have got the literate people in our society who really believes that yes, woman is the one who can stand next to us. So it's not like we can't do anything. We have the power. We should just speak for our rights. We should know what women rights are, what we can get in our society. So it's not like no one is supporting us or everyone is against us. It's not. If there are people in the society who can beat a woman, there is a huge campaign and a league who are in the favor of women, who can literally support you, who has the sorrow and the feeling, pity for you. Yes, they can support you. So it's just that you come up and speak for your rights. If you'll stay quiet for your life and get beaten, you don't know your rights. So this is what you have chosen for yourself. So don't cry later. You should come forward and speak for your rights. I feel like domestic violence is the pain of every woman in our society. It exists in our society, we can't deny it. Every mother, every child, every sister, every daughter goes through it every single day, and such a huge majority of the percentage in our society. I'm a part of this campaign because I myself have gone through domestic violence. I'm a victim. I used to be ashamed of it for a very long time. But now that I've gained confidence, I'm much more myself again. I want other women who are going through this to come forward. I want to give them support. I want them to know that there are other people like them in this country that are going through the same things. At first, when it started, it wasn't all that much, maybe a push or a shove, fights, screaming, nothing much, but then it got out of hand. When it got out of hand, I became a recluse. My friends started asking me why I didn't reply, why I wasn't talking to them, why had I become such a hermit. But I was so ashamed. All these marks on my face, it should definitely be stopped. Women need to know that what their rights are, that they have a voice in the society. Men are not above women, women are not above men. Everyone is equal. They have their rights, everyone is human, humanity should exist. The government, the media, all the authorities responsible, they should
encourage it. They should search for this. They should hold workshops. They should make it an issue because it is a big issue. इस कैंपेन का हिस्सा इसलिए बनना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि औरतों को इंसाफ मिले। आजकल के माशरे में ये बात बिल्कुल औरतों पर बहुत जुल्म किया जाता है। ये बात मैंने अपने खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ में कि जब मैं इस हालत में यूनिवर्सिटी गई हूँ तो मुझे लोगों के तरह तरह के सवाल, पहले तो उन लोगों ने ऐसी ही मुझे खूबियाँ कराई और इस तरह देखा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मतलब हमारा माशरा ये है कि लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं इंस्टेड कि आप उसकी हेल्प करें, उससे पूछें कि क्या हुआ, क्यों हुआ। आप जाके उसकी बुरियाँ कराते हैं और अजीब अजीब तरीके से उसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। और जब मैं क्लास की तरफ गई, क्लास में इंटर हुई, बारी बारी सारे लोगों ने पहले मुझे घूरा और पीछे मेरे से एक फ़ासला रखना शुरू कर दिया और मेरे साथ कोई आके बैठा नहीं क्लास के अंदर कि मतलब जैसे मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। इंस्टेड कि वो मुझसे पूछें कि तुम्हारी तकलीफ़ क्या है, उन्होंने मुझसे दूर होना शुरू कर दिया। दूसरा, जब मुझे इस बात पे हैरानी हुई है कि जब टीचर्स आए उन्होंने देखा, उन्होंने भी कोई हेल्प, कोई कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा। और एक कोने पे मैं बैठी हुई थी जहाँ पे मुझसे कोई बात, कोई कुछ नहीं किसी ने। मैं ये चाहती हूँ कि औरतों को उनके हकूक़ दिए जाएं, उनको वो सब कुछ मिलना चाहिए जो एक इस्लाम में है। इस्लाम में औरतों के बहुत अच्छे हकूक़ मुकर्रर किए गए, उनको फॉलो किया जाए। मैं ये चाहती हूँ अगर किसी औरत के साथ ऐसा कोई जुल्म होता है तो उसे बाहर निकलना चाहिए, अपने उसके लिए बोलना चाहिए कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, अगर हुआ है तो क्या वजह थी, क्यों, किसने किया, उसे सज़ा होनी चाहिए। जैसा कि हमारे इस्लाम में है कि जो गलत करेगा उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, एक गलत चीज़ है, एक बहुत बड़ी बुराई है। ऑफ कोर्स एक आप जीते जागते इंसान के ऊपर तशद्दुद कर रहे हो, उसको मार पीट रहे हो, लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी में लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे नेबर्स में किसी को कुछ हो रहा है तो हम नहीं बोलेंगे जब तक हमारे ख़ुद के साथ वो चीज़ नहीं होती। आजकल सोसाइटी में बल्कि ज़्यादातर मशरक़ी औरतों को यही तरबियत दी जाती है जब से वो छोटी होती हैं कि आपने नहीं बोलना। अगर आपका बाप आप पे तशद्दुद करता है, आपका भाई करता है, खामन करता है, कोई भी करता है तो आपने उस पर बोलना नहीं है, आपने सिर्फ चुप करके उसको सहना है। लेकिन हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कब तक हम चुप रहेंगे और कब तक हम ये चीज़ सहते रहेंगे। बिकॉज़ किसी ना किसी को तो पहला कदम उठाना है और अवेयरनेस देनी है बाकी औरतों को भी कि आपको भी आगे आना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। तो शायद मैं ही कई औरतों की आगाही का सबब बनूं और शायद मेरी वजह से ही उन लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आए कि वो भी इसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। और बेसिकली लोगों को, औरतों को सोसाइटी का ज़्यादा डर होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम आगे आके कुछ कहेंगे। तो मैं भी शायद इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से उनके अंदर से ये डर ख़त्म हो जाए कि लोग क्या कहेंगे और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पहले तो जब हल्की फुल्की लड़ाई हो जाती थी तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन जब निशान हुए चेहरे पर तो बहुत से अच्छे लोग थे जिन्होंने कहा कि आपको इसे रोकना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमदर्दी की। लेकिन बहुत से बुरे लोग भी थे जिन्होंने ये कहा कि शायद ये यही डिज़र्व करती थी, या मतलब औरत यही डिज़र्व करती है, वो अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, औरत तो है ही हमारे पाँव की जूती, औरत को तो ऐसे होना चाहिए औरत के साथ। तो लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, काफ़ी लोगों ने जो है वो बुरा भला भी कहा। हम लोग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए हम लोग डिफरेंट सेमिनार्स मतलब करवा सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग डिफरेंट मूवीज़ बना सकते हैं, इस पे शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं जिससे हम लोग इसकी अवेयरनेस दे सकते हैं।
बल्कि हम लोगों को अपनी एजुकेशन में भी इस चीज़ को एक पार्ट बनाना चाहिए और अपने मर्दों को ये सिखाना चाहिए कि औरत इसलिए नहीं है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, बल्कि औरत के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो आपको रहना चाहिए। जब मैंने इन लड़कियों को देखा तो मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा, स्पेशली इनके जो फेस पे जब स्कार देखे हमने तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग्स आई कि ये नहीं होना चाहिए था। और आजकल की जो जनरेशन है वो कभी भी ये नहीं चाहती है कि उनके साथ उनकी जो मदर्स हैं और वो उनके साथ औरतों के साथ ऐसा बिहेव किया जाए। बिल्कुल इनको देख के ये जिस तरह से मैंने नोटिस किया है इन गर्ल्स को और तो बाकी लोग भी बिल्कुल इस तरह से नोटिस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक क्यूरियोसिटी आती है बंदे के अंदर कि वाई दे आर लाइक दिस एंड इनको क्या हुआ है, इनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है और वट एवर हैज़ बीन देयर। तो इस तरह से बिल्कुल लोग जो है क्वेश्चन करेंगे आपसे कि ये क्या है, एंड व्हेन दे विल गेट टू नो दैट वी आर डूइंग इट जस्ट लाइक फॉर द डॉक्यूमेंट्री और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, तो बिल्कुल उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में लोग हमें बताना चाह रहे हैं। तो ये इट्स अ गुड स्टेप एंड आई लाइक इट।